ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ ਸੁਜਾਨਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕਲਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਮੀਨਾਰ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿਰਜਣਾ ਦੀ ਰੂਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾਕਟਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਮੋਹਨ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ 'ਚ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਡਾਕਟਰ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ, ਡਾਕਟਰ ਬਿਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵਿਜੇਤਾ ਡਾਕਟਰ ਜਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਡਾਕਟਰ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋਹਲ, ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਕਲਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪਰਦੇਸੀ ਨਾਮਵਰ ਆਲੋਚਕ ਅਤੇ ਚਿੰਤਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। पगड़ी का रंग देखिए कितना सूहा है, गुलाब ਮਨੁੱਖ ਸਿਰਜਕ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਲਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ, ਕਲਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ ਸੁਜਾਨਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਮਾਗਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਸੀ ਕਿ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿਰਜਣਾ ਦੀ ਰੂਹ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕ ਕਾਰਜ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਪਾਏ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਪਾਏ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਪਾਏ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਅੱਜ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਬਹੁਤ ਮੁੱਲਵਾਨ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕ ਰੁਚੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨਾ ਔਰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਾਂਗੇ, ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਉਸ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਗਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਇਹ ਕਾਲਜ ਇਸ ਉਦਮ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾ ਕਾਲਜ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਵਿਦਵਾਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਕੀਤੇ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ? ਬੱਚੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਮਝਦਾਰ ਲੱਗੇ ਨੇ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਸ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਸਮਝ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤਜਰਬਾ ਲੈ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗੇ ਔਰ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਉਣ वाली ज़िंदगी 'ਚ बहुत कामयाबियाँ हासिल करने। बचपन से मैं या तो किताबों में पढ़ता आया या फिर अपनी माँ से सुनता आया कि चमत्कार होते हैं, लेकिन मेरी ज़िंदगी में कोई ऐसा मौका नहीं आया था जिसको मैं सचमुच कोई चमत्कार कह सकूं। और वो मौका आज का दिन है जब पद्म श्री जनाब सुरजीत पात्र जी, जिनका नाम पंजाब साहित्य, पंजाब कविता पूरे भारतवर्ष नहीं पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, उनके चरण मेरे कॉलेज में पड़े। इतना बड़ा आदमी और इतने छोटे से कॉलेज में आए, अब इससे बड़ा चमत्कार क्या हो सकता है। पंजाब कला परिषद के माध्यम से जो आज एक सांस्कृतिक और एक कार्यक्रम हमने किया, उसकी सदारत तो सुरजीत पात्र जी कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ कुछ ऐसी हस्तियां मौजूद हैं जो अपने आप में एक सिग्नेचर हैं। जनाब एस परदेसी साहब हैं, सूफी साहित्य के आलोचक हैं। जनाब डॉक्टर बिराम सिंह संधू हैं, जिनको तो मिलके ही दिल धक धक करता है। जनाब डॉक्टर जौहल, लखविंदर जौहल जी हैं, जो दूरदर्शन के डायरेक्टर तो हैं ही हैं, एक उच्च व्यक्तित्व के सोच के मालिक हैं। और उनकी खासियत ये है
कि वो उनकी कथनी और करनी में 1 इंच भी अंतर नहीं होता। हालांकि वो आंदोलनों से निकले हैं, पर जिस शांत स्वभाव के साथ वो अपनी बात करते हैं, वो अपनी कृति लिखते हैं, वो मेरा सर उनके सामने नतमस्तक होता है। जहां मैं डॉक्टर जौहल लखविंदर जी का धन्यवादी हूं, जहां मैं डॉक्टर वर्याम सिंह संधू जी को जी आया कहता हूं, वहां डॉक्टर परदेसी जी को नतमस्तक होता हूं। लेकिन ये एक बड़ी मेरे लिए फख्र की बात है कि मेरे विद्यार्थियों को आज वो लाभ प्राप्त हुआ जिसके लिए लोग तरसते हैं। लोग कहते हैं हाँ मेरी पात्र साहब के साथ फोटोग्राफ हो जाए। मेरे सारे स्टाफ सदस्य, मेरी सारे स्टाफ मेंबर्स जो विद्यार्थी हैं वो ये कह रहे हैं सर हमारी फोटोग्राफ होनी चाहिए पात्र साहब के साथ, वर्याम सिंह संधू जी के साथ, जौहल साहब के साथ, परदेसी साहब के साथ। तो ये मौका बाबे नानक की कृपा से ही हमारे कॉलेज में मिला है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जहाँ पंजाब कला परिषद ने हमें सहयोग दिया, आर्थिक सहयोग दिया, उनकी वजह से ये आज का जो सेमिनार हुआ 1 रोज़ा, वहाँ आने वाले समयों में भी हमारे इस कॉलेज की फुलवाड़ी बढ़ती रहेगी। मेरे कॉलेज का नाम बहुत रोशन होगा, मेरे विद्यार्थियों के दिल धक धक करते रहेंगे। जो आभा, जो रौनक, जो खुशी आज मैंने अपने बच्चों के चेहरे पे देखी है, शायद मैंने कहीं नहीं देखी। मैं दुनिया भर में घूमा हूँ, लेकिन जितना आनंद इन महापुरुषों के आने से मुझे मिला है, मैं बहुत नतमस्तक हूँ। और अपने वाइस चांसलर डॉक्टर जसपाल सिंह संधू जी का विशेष धन्यवाद करता हूँ कि उनकी कृपा ना हो तो मैं इस कुर्सी पर नहीं बैठ सकता, उनकी कृपा ना हो तो इस तरीके के उच्च स्तरीय फंक्शन हम नहीं कर सकते। इन शब्दों के साथ एक बार फिर मैं यहाँ इन महानुभावों का धन्यवादी हूँ। मैं जो पठानकोट के इर्द गिर्द से आए कवि गण हैं, लेखक गण हैं, जो अपने आप में एक सिग्नेचर लेते हैं, सिग्नेचर देते हैं, उनकी खुशबू भी मेरे कॉलेज के अंदर विद्यार्थियों में फैली। मैं सबके आगे धन्यवादी हूँ, नतमस्तक हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में ऐसा कार्यक्रम चलता रहेगा। महाराणा प्रताप सीनियर सेकेंडरी स्कूल भनवाल, जो कि शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा नाम है, जहां पर दाखिला शुरू हो चुका है, जिसमें प्री नर्सरी से लेकर 12वीं तक के बच्चों को उच्च गुणवत्ता के साथ शिक्षा दी जाती है। स्कूल में हाईटेक कंप्यूटर लैब, विज्ञान लैब स्थापित है, जहां पर बच्चे उच्च शिक्षा को ग्रहण करते हैं। स्कूल में क्वालिफाइड टीचर्स द्वारा बच्चों को बड़े ही सरल ढंग से शिक्षा दी जाती है। स्कूल में अच्छी बिल्डिंग, प्लेग्राउंड विद्यार्थियों के लिए बनाई गई है, जहां पर बच्चे पढ़ने के बाद बड़े बड़े मुकाम हासिल कर सके हैं, जिनमें कई बच्चे नेवी, एयरफोर्स और जज जैसे महत्वपूर्ण पद प्राप्त कर चुके हैं। इसलिए अभिभावक बिना किसी देरी के अपने बच्चों को इस स्कूल में दाखिला करवा के अपने बच्चे को उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर करें। Name is Niharika Dhiman. I study in 8th standard. Maharana provide a safe environment where we can inspire to learn and explore, and admission are open. So please come and join our school, Maharana Pratap Senior Secondary School, Bhanwal. Parents, my name is Kritika. I read in 3rd class. A strong partnership between home and school is the key to students' achievement. So admission are open in Maharana Pratap Bhanwal School. मैं प्रिंसिपल राममूर्ति शर्मा, महाराणा प्रताप सीनियर सेकेंडरी स्कूल पनवाल, जिला पठानकोट। हमारे स्कूल में जो साल 2024-25 है, इसके लिए दाखिला शुरू है और हमारे स्कूल में दाखिले के लिए किसी प्रकार का कोई फंड, कोई चार्जेस नहीं लिए जा रहे हैं। ओनली एडमिशन फ़ीस, सिर्फ ट्यूशन फ़ीस वगैरह ली जा रही है, बाकी और किसी प्रकार का चार्ज नहीं। मंथली फ़ीस लेते हैं हम और कोई किसी प्रकार की कोई फ़ीस नहीं ले रहे हैं। हमारे स्कूल के पिछले साल के जो रिकॉर्ड हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। पिछले साल हमारे स्कूल में 110 विद्यार्थी 12वीं क्लास में बैठे थे और सारे के सारे पास हुए थे। इसी तरह से 51 विद्यार्थी हमारे 10वीं क्लास में बैठे थे, सारे के सारे पास हुए थे। 17 विद्यार्थी हमारे 8वीं कक्षा में बैठे थे और सारे के सारे पास हुए थे और सारे विद्यार्थियों ने बहुत ही अच्छे अंक लिए थे। हमारे स्कूल में
बहुत ही बढ़िया कैंपस है, अच्छे हवादार और लाइट वाले कमरे हैं। हमारे स्कूल में हर प्रकार की ग्राउंड है, बास्केटबॉल की ग्राउंड है, वॉलीबॉल की ग्राउंड है, कबड्डी की ग्राउंड है, खो खो की ग्राउंड है, बैडमिंटन की ग्राउंड है। और हमारे स्कूल की जो कैंपस है, जो सुंदरता है, वो देखते ही बनती है। ठीक है, हमारे स्कूल में ट्रांसपोर्टेशन की भी सुविधा जो है वो बच्चों को दी जाती है। हमारे स्कूल में जो है अच्छे और बढ़िया पढ़ाने वाले सभी प्रकार के टीचर हैं। और हम जब टीचर इनरोल करते हैं तो उनका एक खास इंटरव्यू लिया जाता है, उनकी क्वालिफ़िकेशन देखी जाती है और फिर ही उनको हम अपने स्कूल में रोज़गार देते हैं। और सारे टीचर बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। नर्सरी क्लास से लेकर के हमारे स्कूल में 12वीं क्लास तक जो दाखिला है वो शुरू है। ठीक है, प्री प्राइमरी, अपर प्राइमरी और सीनियर सेकेंडरी तक हमारे स्कूल में सभी प्रकार की क्लासें जो है वो चल रही हैं और दाखिला शुरू है। मेरी सभी अभिभावकों से, विद्यार्थियों से प्रार्थना है कि वो आएँ और यहाँ पर आकर के अपना एडमिशन जो है वो करवाएँ। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।